ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਆਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਭੇਖ ਭਗਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ 30-40 ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ। ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਈਏ, ਚਮਕਾ ਦਈਏ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਈ, ਆਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ।
मैं कहा ठीक है, अगर इस तरह तुसी प्रत्यक्ष रूप विच कोई सुख का स्वरूप दिखाओगे तो फिर जरा सोचांगे, जिथे तक मेरा इरादा है, मेरी सोचनी है, ऐसी नौबत नहीं आवेगी। तुसी इस तरह का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकते। वो हस पे उथे ते उन्हां दी हसी इंज सी जिवें कटाक्ष, जिवें तनस, भी जिवें मूर्ख कोई समझदा नहीं। वो जब चला गया, यकीन जानो उस दिन सारा दिन रहा मैं भी बेचैन। मैं तो पता नहीं की दिखाएगा, की लियावेगा। किधरे ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कोई ज्यादा कह गया तो गल इतनी मैं स्पष्ट ना कर सका। उनींद्रा किसनों कहते ने, नींद का ना आना, यह भी मैंने उस दिन पता चलिया। मैनू रात में नींद भी नहीं पई, दिमाग सोचता ही रहा भाई इन्हें सारे साधुआं दे इकट्ठ दे च पग लानी है। सियाणा बड़ा है, चिंतक बड़ा है, सूझवान है, कई किताबां दा लिखारी है, संस्कृत ते फारसी ते अरबी दा महापंडित है। ये तो पता नहीं की दिखावेगा और कोई मामूली चीज़ पेश नहीं करेगा, क्योंकि मामूली सोचने का मनुख ही नहीं है। खैर ज्यों त्यों करके सवेर हुई, कथा का वकत होया। कथा उत्थे अमृत वेले आउंदी सी, सूरज निकलण तो पहले पहले समाप्ति हो जाती सी। गंगा ते इशनान करके साधु उत्थे ही नितनेम कर लेंदे सन, अपना जो कुछ करना है, तो फिर कथा जो है एक तरीके नाल संध्या चलती सी। इंज कथा दास ने आरंभ की थी और मन उखड़िया हुआ है तो जबान भी उखड़ी हुई है। घंटा जरूर मैं पास किया, लेकिन मैंने खुद भी नहीं पता कि मैं घंटे च की आखे। ये भी मेरी उस दिन हालत रही। वो साधु आया, जब कोई मैनू 15-20 मिनट बोलदियां हो गए, उहदे हत्थ च खिड़े हुए गुलाब के फुलों का गुलदस्ता सी। ते मैं सोचिया शरधा तो यह भी गुरु ग्रंथ साहब की पूरी रखता है। एन अमृत वेले सोहने जिहा फुलों का गुलदस्ता लेके आया है। मत्था जरूर उसने टेकिया, फुल नहीं भेंट किए, अपने हाथ च ही रखे। एन बैठदा भी कोने से, बिल्कुल कोने च बैठ गया। कथा की समाप्ति तो बाद खड़े होकर मैनू कहन लगा, मस्कीन जी ये थानू फुल दिखाई देंदे ने, ये जो मेरे हाथ दे गुलाब के फुलों का गुलदस्ता है थानू दिखाई देंदा है? मैं कहा प्रभु की बख्शिश है, रहमत है, अखां च रोशनी है, दिखाई देंदा है। मैनू कहन लगा जे दिखाई देंदे ने थानू ये फुल, तो फिर फुलों का हासा भी दिखाई देंदा होवेगा, इन्हां दी मुस्कुराहट भी दिखाई देंदी होवेगी, ते इन्हां दा स्वप्न भी दिखाई देंदा होवेगा। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हसदे हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहंदा इतने हासे दे होंदियां, इतनी खुशी दे होंदियां, इतने खिड़ाव दे होंदियां और इतने स्वप्न दे होंदियां, क्या ये आखना फबदा है, चंगा लगता है? नानक दुखिया सब संसार, ऐसा खेड़ा सामने आवे। एक स्वप्न का नमूना सामने आवे, खेड़े की तस्वीर सामने आवे, मुस्कुराहट का मुजस्मा सामने आवे, क्या ये बोल फबदे ने? नानक दुखिया सब संसार, अति उपमा अलंकार है। ये किसे किसे थां ते घटित होवेगा, सब जगह ते नहीं। मन तो बोझ थोड़ा हल्का होया। मैं कहा महात्मा जी धन्यवाद थोड़ा, तुसी मैनू खेड़े दे, खुशियां दे, सुख दे दर्शन कराए। कल तुसी वैदा कीता सी, अज दिखाया, तस्लीम मनदे हैं। गालबन कल वैदा कीता ते अज दिखाया, ये 24 घंटे हो गए, ते हुण 12 घंटिया वास्ते बस सतगुरु की हजूरी च रख जाओ, इत्थे ही रख जाओ, बाकी गल आपां शामी करांगे, बाकी चर्चा तुहाडे नाल शामी होवेगी। इन्हां ही फुल्लां दे संबंध च इन्हां नूं जरा बस इत्थे ही रख जाओ।
ਗੁਲਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਹਿਕ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟਪਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਪਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨੇ। निर्धन मनुख इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं, क्योंकि मूर्खता का जो करके उसनों दुख का इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख तो व्यापक है। कमज़ोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलों नूं वेख के कहते दरखत की पहचान आउंदी है, फलों तो पहचान आउंदी है, बोया की सी। बीज की पहचान किस तो होवेगी? फल तो। कड़वे फलों नूं वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज दे वृक्ष वेखण दे और बीज दे फल वेखण दे। ऐसियां खुर्दबीना तैयार हो गई ने। साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुलों का ये रंग होगा, फल इतने आकार का होगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज दे फल वेखण दे सफल होया है साइंटिस्ट, विज्ञानक। कर्मां दे फल वेखण दे सफल होया है संत, भगत। उन्होंने दिस पिया कर्मां दे बीज दे इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपनी दृष्टि है। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की थी बीज चंगे वधिया बनाई है। तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलों की फसल है, फुलों की फसल है, और बहुतात दे है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की तो शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन दे साइंस का बहुत वड्डा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज दे फल वेखण दे। संत सफल होया कर्म दे फल वेखण दे। इस कर्म चों दुख निकलेगा, इस कर्म चों सुख निकलेगा, इस कर्म चों परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है। अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिसको दुख निकले है। और जो दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने। मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया।
और ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। ते हुण संस्कार भी शुरू च माँ बाप देंदे ने, बोलना सोचना ये पहले तो माँ बाप तो ही मिलता है, जो है मनुखी बच्चे ना। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे सोग ते चिंता लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। माँ बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया कहा सी इस जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर ने कि दुनिया के इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्होंने को औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए है, नहीं तो दुनिया के रोगी रोगी होंगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगां लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई माँ बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानों ते, और माँ बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कार्ल मार्क्स ने एक होर चोट कर दी, तेरी आर्थिक औकड़ा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। और मेरिया आर्थिक जो है कमजोरियां ते दुखों लई समाज जिम्मेवार है, मेरे शरीरक रोगां लई, मेरे मानसिक संताप लई माँ बाप जिम्मेवार ने। मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं, फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष माँ बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी फ्राइड के ख्यालों को लईए, कार्ल मार्क्स के ख्यालों को लईए, साहब कहने माँ बाप दोषी नहीं ने, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है? दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई माँ बाप दोषी नहीं है, कोई समाज दोषी नहीं, तेरे दुखों लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखों लई तू जिम्मेवार है। ना माँ बाप ना समाज, तू किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसी ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरियां आर्थिक औकड़ां लई तू जिम्मेवार है। ना समाज जिम्मेवार और ना ही माँ बाप जिम्मेवार। तू स्वयं दद्दा दोष ना काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है, और ये बीज तेनों परमात्मा ने खुले रूप में दे दिते, अदृश्य रूप में। रसना तेरे कोल है, तेरी मर्जी है, तू सच दे बीज बो भावें झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावें कुड़तन दे। हाथ तेरे कोल ने, भावें गलत कर भावें ठीक कर, पैर तेरे कोल ने, भावें गलत पासे जा भावें सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है, और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान होई। ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक, मानसिक, वाचक। जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा, मानसिक कर्म। जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा, वाचक कर्म। जो मैं हत्थां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा, शरीरक कर्म। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तो उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसी नूं भी दोषी ठहराण दी लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं होणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं होणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं होणगे। कर्म ही ते बीज सन। ते मैं फिर अर्ज करा, मनुख हर बंदा
जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट वेख सकता है, अज भी वेख सकता है ये बीज ठीक नहीं ने, ये चो फल ठीक नहीं निकलेगा, ये चो फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे दुख सुख दा फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने, कर्मां दी छटाई कीती संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। और इन्हां कर्मां नूं झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना है। ये रब्बी विधान जद महात्मा बुद्ध दे सामने आया, उन्हें अपने भिक्षुआं नूं कहा, रब नूं नंबर 2 ते रखो, कर्म नूं नंबर पहले पिछे रखो रब नूं। क्योंकि रब ने भी एक नियम बना दिता है कि जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, इसे बीच चो दुख सुख निकलणगे। और उसका विधान भी अटल, उसका नियम भी अटल। ये नहीं अगर वो फैसले बदलता है, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमज़ोर ने, उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, ਉਹਦੇ नेचल होने का सबूत कितों मिलता है, ਉਹਦਾ नियम नेचल है। भारत का जोड़ा राष्ट्रीय विधान है ना, जिस दे मुताबिक मुल्क नूं चलाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज़्यादा दफ़ा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है। 150 तो भी वध। जद जद देखा गया विधान, ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब है 150 दफा पहले होई है। जे पहले उस विधान नूं सही मन के देश नूं चलाया जाता रहा, तो साल 2 साल बाद 10 साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, ये भी संशोधन करना पे, और कितनी दफा करना पे, 150 दफा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यदा मतलब वो कोल भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। ਉਹਦਾ नियम भी अटल नहीं है, ਉਹਦਾ विधान भी अटल नहीं है। फिर उन्होंने भी ठीक करना पैंदा है, उन्होंने भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्होंने भी सोचना पैंदा है कि ये मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है, और ये मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान दे जो है तब्दीली करा नहीं। सच्चा आप सच्चा दरबार, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका नियम सच्चा है, उसका दरबार अटल है, वो कोई तरमीम नहीं, वो कोई संशोधन नहीं। कर्मां दी विचार आउंदी है, उसके दरबार दे किस ढंग नाल आउंदी है। ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी तो अपनी चाल नाल चलती है। तो कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जत्थियां ने कीर्तन भी करना होंदा है, और महापुरखों दी इत्थे विचारां होंदियां ने। इतनी जो है प्रवान करनी है। दास ने अगे जाके 7:45 बजे गुरुद्वारा सरी दे जो है हाज़री भरनी है। उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनूं उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारिਆਂ ਦੇ इस ढंग के प्रश्न सन। ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। ते 1-2 दिन दे दास ने निखेड़ा करना है। भावें इस संबंध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनियां रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सके थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरे दुखां लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखां लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देऊ काहूँ, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।